آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 27 جولائی 2026 اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو پھر دے ڈالی بڑے فوجی حملے کی دھمکی۔ ایران بولا جنگ اور امن کا فیصلہ امریکہ نہیں کرے گا۔ ہوتھیز نے سعودی عرب کی سب سے اہم آئل لائن پر کیا بڑا حملہ۔ سعودی عرب سے گھبرائے UAE نے بھی امریکہ سے نیوکلیئر ڈیل میں مانگی رعایتیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے نئے رہائشی علاقوں پر بڑھایا اپنا قبضہ۔ عراق کی دولت پر پڑ گئی $35 بلین کی ڈکیتی۔ زیلنسکی نے برٹین کے نئے پرائم منسٹر سے ایئر کرافٹ کیریئر پر کی اہم ملاقات، اور کروڑوں زائرین کربلا کی طرف روانہ۔ سامنے آیا انسانوں کا پیدل چلتا سمندر۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر سیدھی دھمکی دے دی اور یہ کہہ دیا ہے کہ اگر بات چیت ناکام ہوئی تو امریکہ دوبارہ بڑے پیمانے پر فوجی حملہ شروع کر دے گا۔ تو کیا بات چیت چل رہی ہے جس کے ناکام ہونے کی بات کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت ایران کے ساتھ بہت گہری بات چیت چل رہی ہے، اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوئی تو امریکہ بہت زوردار ملٹری ایکشن پر واپس لوٹے گا۔ 3 دن سے امن ہے، پھر سے جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے میڈیٹرز کی درخواست پر حملے روک کر بات چیت کا موقع دیا ہے۔ 3 دن بعد یہ کہا کہ کس کی درخواست پر حملے روکے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایران کو زیادہ وقت نہیں دیں گے ہم۔ ٹرمپ نے کہا یا تو بات جلدی ہوگی یا پھر بالکل نہیں ہوگی۔ دوستو یاد رکھیے، پچھلے دنوں ایسی رپورٹس آئی تھیں کہ امریکی جنرلز نے ٹرمپ کو بتایا تھا کہ آگے کی ایئر سٹرائکس اثردار نہیں رہیں گی، اور امریکہ کے پاس میزائل انٹرسیپٹرز بھی تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ نے اب دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے جڑے تمام میڈیٹرز نے ان سے کہا تھا کہ ابھی حملہ مت کیجیے۔ یعنی ٹرمپ اپنی کرکری کو بچا رہے ہیں میڈیٹرز کا نام لگا کے۔ ادھر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی ملاقات میں نتن یاہو سے ایران پر ہی بات کریں گے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نہیں ہوتے تو اب تک ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا چکا ہوتا اور اسرائیل تباہ ہو گیا ہوتا۔ اب سوال یہ ہے دوستو، کیا ٹرمپ کی یہ نئی دھمکی صرف ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے، یا امریکہ نے ملٹری ایکشن کا نیا پلان پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے؟ بڑھتے آگے، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران بہت سیریسلی بات چیت کر رہا ہے، لیکن ایران سے 27 جولائی کی رات آئی خبر بالکل الگ عکس پیش کر رہی ہے۔ یہ خبریں تازہ لاتا ہوں، اسی لیے آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ خبر سنیے۔ ایران کی مہر نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ یعنی ڈپٹی فارن منسٹر کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ نے بات چیت کے دوران ایسی شرطیں رکھ دیں جنہیں ایران نے حد سے زیادہ اور قابل قبول نہیں مانا۔ غریب آبادی کے مطابق ایرانی ڈیلیگیشن نے امریکی پلان کو صاف طور پر رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد امریکی ڈیلیگیشن نے کہہ دیا کہ اگر یہ پلان منظور نہیں ہوتا تو بات چیت ناکام مانی جائے گی، اور پھر امریکی ٹیم خود ہی بات چیت چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ پچھلی ملاقاتوں کی بات بتا رہے ہیں، اور اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد یہ بیان آیا ہے۔ غریب آبادی نے یہ بھی کہا کہ ایران کی طرف سے بات چیت جاری رکھنے کی کوئی ضد یا درخواست نہیں کی گئی ہے، نہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور یہی ایران کی وقار والی ڈپلومیسی کی مثال ہے۔ ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں، ایران کچھ کہہ رہا ہے، دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ایران نے امریکہ سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جنگ کب شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی اس کا فیصلہ امریکہ نہیں کرے گا۔ 27 جولائی کی رات ایران کی وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن اسماعیل باغئی نے یہ کہا کہ ایران ہرگز امریکہ کو یہ اختیار نہیں دے گا کہ وہ جنگ اور امن کا وقت طے کرے۔ پاکستان اور قطر کی طرف سے ایران امریکہ بات چیت کی کوششوں پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں اسماعیل باغئی نے کہا کہ جس جنگ کے ذریعے امریکہ ایران کو سرنڈر کرانے نکلا تھا، اسی جنگ میں وہ پچھلے 5 مہینوں سے خود دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ یعنی ایران صاف کہہ رہا ہے کہ امریکہ اب اپنی شرطوں پر نہ جنگ چلا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی شرطوں پر اسے ختم کر سکتا ہے۔ ہوتھیز نے سعودی عرب کی سب سے اہم آئل سپلائی لائن پر بڑا حملہ کر دیا ہے، اور اس بار نشانہ بنایا گیا ہے یانبوع ٹرمینل، جسے سعودی عرب اسٹریٹ آف ہرمز سے بچ کر تیل بھیجنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی اب نہ ہرمز سے تیل جائے گا نہ اس طرف سے ہوتھیز جانے دے رہے ہیں۔ 27 جولائی کی شام آئی رپورٹس کے مطابق حملے کے بعد کنگ فہد روڈ کے قریب موجود فیول ڈپو میں آگ لگ گئی یانبوع میں۔ اس کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئے ہیں۔
दोस्तों याद रखिए, साल 2019 के बाद ये पहली मर्तबा है जब हुथीज ने सऊदी अरब के ईस्टर्न ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। जिस पेट्रोलाइन पाइपलाइन को निशाना बनाया गया है उसकी लंबाई करीब 1200 किलोमीटर है और यही पाइपलाइन सऊदी अरब के मशरकी ऑयल फील्ड से कच्चा तेल यानबू के रेड सी पोर्ट तक पहुंचाती हैं, बंदरगाह तक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने के बाद सऊदी अरब इसी पाइपलाइन पर पहले से कहीं ज़्यादा निर्भर हो गया था, डिपेंड हो गया था। पहले इस रास्ते से करीब 10 लाख बैरल तेल रोज़ाना भेजा जाता था, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर लगभग 50 लाख बैरल रोज़ाना तक कर दी गई थी। हालांकि सऊदी अरब के पास अभी भी नॉर्दर्न यानबू टर्मिनल मौजूद है जिससे ऑयल एक्सपोर्ट जारी रखा जा सकता है। अब सवाल ये कि कहीं वहाँ हमला ना हो जाए। सवाल ये भी है कि क्या हुथीज़ ने जानबूझकर सऊदी अरब की उसी ऑयल लाइन को निशाना बनाया है जिस पर हॉर्मुज के तनाव के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा रहा था, और क्या इसका असर अब दुनिया के तेल बाज़ार पर भी दिखाई देगा? आखिर में मेरे सवाल दरअसल आने वाले कल की खबर होते हैं, इन्हें ध्यान से सुना करके आगे बढ़ते हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक आज सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 अलग अलग डायरेक्शन से हमले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इराक की तरफ से छोड़े गए ड्रोन ने ईस्टर्न रीजन और रियाद में मौजूद ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया, जबकि दूसरी तरफ हुथीज़ ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के यानबू जाने वाले ऑयल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और पाइपलाइन पर हमले किए हैं। वो हम पिछली खबर में आपको बता चुके हैं हुथीज़ का हमला। यानी एक ही दिन में सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 अलग अलग डायरेक्शन से निशाना बनाया गया है। तस्वीरें ये अलहदा हैं पिछले वीडियो से, लेकिन अभी तक सऊदी अरब ने नहीं बताया कि नुकसान कितना हुआ है। इराक में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि इराक के बाबिल सूबे में अमरीकी MQ-9A रीपर ड्रोन को मार गिराया गया है। ये 27 जुलाई की रात खबर आई। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी ग्रुप ने नहीं ली है और अमेरिका की तरफ से भी इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। क्या इराक में अमरीकी ठिकानों और फौजी असबाब पर हमलों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है? सवाल यही है। और क्या ये पूरे रीजन में एक और बड़े टकराव का इशारा तो नहीं है? सऊदी अरब के साथ अमेरिका की न्यूक्लियर डील अब रायता फैला रही है। पूरे मिडिल ईस्ट में नया बवाल खड़ा करती नजर आ रही है ये डील। अरब में अब कंपटीशन चल गया है। 27 जुलाई को आई इसराइली वेबसाइट जेफीड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब UAE ने भी अमेरिका से अपनी पुरानी न्यूक्लियर डील में बड़ी रियायतें देने की मांग कर दी है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसकी वजह हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुआ नया न्यूक्लियर समझौता है, जिसमें सऊदी अरब को पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा नरम शर्तें दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस नई डील में रिसर्च पीरियड के बाद सऊदी अरब को अपने मुल्क में यूरेनियम एनरिचमेंट करने की इजाज़त दी गई है और इसमें IAEA के सख्त एडिशनल प्रोटोकॉल की शर्त भी शामिल नहीं की गई है। UAE को इन दोनों बातों से प्रॉब्लम है क्योंकि ये दोनों उसे रियायतें नहीं मिली। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यही वजह है कि अब UAE भी अमेरिका से अपनी 2009 वाली न्यूक्लियर डील में बदलाव चाहता है। 2009 में UAE और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हो चुकी है। वहाँ एक न्यूक्लियर प्लांट भी लगा है बिजली बनाने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। बढ़ते हैं आगे। 14 साल इसराइली जेल में गुजारने के बाद एक फ़लस्तीनी कैदी हानी हनून आखिरकार अपने घर लौट आया। नाबलस से ताल्लुक़ रखने वाले हानी हनून की 14 साल बाद अपने घर वालों से मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आए। 14 साल। दोस्तों याद रखिए, इसराइली जेलों में आज भी न जाने कितने हज़ारों फ़लस्तीनी ऐसे बंद हैं जिन पर कभी बाकायदा जुर्म साबित ही नहीं किया गया। कई लोगों की ज़िंदगी के 10, 15, 20 साल यूं ही काली कोठरियों में गुजर जाते हैं। उनकी काली कोठरियों में जो उन्हीं की ज़मीनों पर आकर बसे या बसाए गए, और जब वो फ़लस्तीनी जेल से बाहर आते हैं तो वक्त बदल चुका होता है, इसराइल बदल चुका होता है, लेकिन फ़लस्तीन का मुक़द्दर नहीं बदलता। वही जुल्म, वही फ़लस्तीनियों को उठा कर ले जाने की कहानियाँ, वही टूटे हुए घर, वही बुलडोज़र और वही फ़लस्तीनी ज़मीनों पर बाहर से आए नाजायज़ सेटलर्स के कब्ज़े, यही सब सुनने को मिलते हैं। फ़लस्तीन की कहानी नहीं बदलती। बात गज़ा की। गज़ा में आज सुबह भी इसराइली फ़ौज ने नए रिहायशी इलाकों पर कब्ज़ा बढ़ाना शुरू कर दिया। तस्वीरें और रिपोर्ट 27 जुलाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई नए इलाकों में फ़लस्तीनियों को जबरन घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और कई रिहायशी मोहल्ले अब पूरी तरह तबाही के दायरे में आ चुके हैं।
याद रखिए, गज़ा की ज़मीन हर रोज़ छोटी होती जा रही है और उसके साथ ही फ़लस्तीनियों के रहने की जगह भी लगातार कम होती जा रही है। हर गुज़रते दिन के साथ इस्राएली फ़ौज नए इलाकों में दाखिल हो रही है, कब्ज़े कर रही है, पुराने रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या गज़ा में ये सिर्फ जंग है या फिर ज़मीन पर नई हकीकत थोपने की कोशिश भी साथ साथ जारी है? इराक के तेल की दौलत पर पिछले कई सालों से सबसे बड़ी डकैती पड़ रही है और अब जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 से अब तक इराक की तेल की चोरी और बर्बादी की वजह से $35 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। $35 बिलियन। दावा किया जा रहा है कि हर रोज लगभग 15 लाख बैरल तेल रास्ते में ही गायब हो जाता है और ये तेल अलग अलग मिलिशिया ग्रुप्स और सियासी पार्टियों तक पहुंच रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इराक के तेल सेक्टर में गहरे करप्शन, कमजोर निगरानी और हथियारबंद ग्रुप्स का असर इस बड़े नुकसान की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, ये वही पैसा है जिसकी इराक को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुल्क इस वक्त एक बेहद संगीन लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना कर रहा है। यानी तेल से मालामाल मुल्क आज भी अपने ही तेल की दौलत से महरूम होता जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तेल का असली मालिक कौन है, इराक या बंदूक के दम पर बैठे कुछ मिलिशिया ग्रुप्स? इराक के प्राइम मिनिस्टर अली अल ज़ैदी कल तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं और इस मुलाकात में सिर्फ ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी और मिलिट्री कोऑपरेशन पर भी अहम बातचीत होगी। इराकी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैदर अल अबूदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी और मिलिट्री लेवल पर कोऑपरेशन बढ़ाने पर बात होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरे में पानी का मसला भी सबसे अहम एजेंडा रहेगा। इसके अलावा एनर्जी, डेवलपमेंट, रोड प्रोजेक्ट और उसे जल्द पूरा करने के तरीकों पर भी तफसीली बातचीत होगी। अब सवाल ये है कि क्या तुर्की और इराक की ये बढ़ती नज़दीकियां सिर्फ कारोबार तक महदूद हैं या फिर पूरे रीजन में बदलते हालात के बीच दोनों मुल्क किसी बड़े स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं? यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहम से मुलाकात की है और दोनों की ये मीटिंग ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ पर हुई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दोनों के बीच यूक्रेन की हिफाजत, जंग की मौजूदा सूरत हाल और दोनों मुल्कों के बीच जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाने पर बात हुई। दोस्तों, याद रखिए, ब्रिटेन में एंडी बर्नहम के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यूक्रेन की किसी ऑफिशियल टीम का ये पहला दौरा है। ज़ेलेंस्की ने इस दौरान कहा कि बर्नहम ने भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन के लिए ब्रिटेन की हिमायत पहले की तरह जारी रहेगी। अब देखिए, ये तस्वीरें किसी इंसानी समंदर से कम नहीं हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ज़ायरीन एक साथ करबला की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सामने आई एरियल वीडियो में करबला जाने वाली सड़कों पर ज़ायरीन का ऐसा हुजूम दिखाई दे रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबाइन के मौके पर इराक के अलग अलग रास्तों से दुनिया भर के ज़ायरीन पैदल करबला की तरफ रवाना हो चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वीडियो में दूर दूर तक सिर्फ इंसानों का समंदर दिखाई देता है जो एक ही सिमत में बेहद नज़्मो ज़ब्त के साथ करबला की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, इस छोटी सी क्लिप में आप करोड़ों लोगों को नहीं देख पाएंगे, लेकिन करोड़ों लोग जाते हैं इराक। अरबाइन को दुनिया का सबसे बड़ा सालाना अमन पसंद इज्तिमा माना जाता है, जिसमें इराक के अलावा ईरान, पाकिस्तान, भारत, लेबनान, अफगानिस्तान और दुनिया के दर्जनों दूसरे मुल्कों से ज़ायरीन शामिल होते हैं। हर साल करोड़ों लोगों में से कई लाख लोग इमाम हुसैन की याद में सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफ़र तय करके करबला पहुँचते हैं और यही वजह है कि इस इज्तिमा को दुनिया की सबसे बड़ी पैदल ज़ियारत भी कहा जाता है। ये मंज़र सिर्फ एक मजहबी इज्तिमा नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी रूहानी मुहिम की तस्वीर भी पेश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।